A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, students, we are just continue the chapter number 6th of history, the early states. So, in yesterday class, we have already read it about the political system. The political system basically, beta, as you know that the several villages formed a Vish and many Vish collectively formed a Janpada and Janpada was headed by the Janpati, and over the time of period many Janpadas grow up and acquiring more territory and come back to known as a Mahajanpadas. So बच्चे by the 200 BCE there were a total of 16 Mahajanpadas. So बच्चे we are just recall the chapters and just quick recap of this. So बच्चे the Janpada and Mahajanpadas. The Mahajanpada was governed in the two different ways. The first one is monarchy government and the second one is republican kind of government. So as you know that monarchy government there was a ruled by the king or a queen, and basically this is the hereditary system. The people have to follow the rule by the father to the son, and the Koshala, Vatsa, Magad, Avanti become the most powerful monarchical Janpadas. These are the maps. In yesterday class we have also discussed about it. These are some important centers like Kosala, Vatsa, Magad, Kashi. Got it? Avanti. Now beta, the second kind of Mahajanpada, that is a republican Janpadas. Basically in this group of people who are elected by the ruled by the group of people who are elected by the people. Shakya and Lachavi was the prominent republican Mahajanpadas. Now we are just also read it about the fortification. What is that means of fortified? To build a long wall, to build a high wall. Building a high wall around a place so as the give protection to people living inside it. So basically why the rulers and a king made this type of fortified? To show the power and prosperity of Mahajanpadas and to provide the safe and secure environment to the people. They were also live without the threat of raids and invasion from outside. So in today's class we are just going to study the expansion of territories. बेटा किस तरीके से किंग अपने एरिया का एक्सपेंशन करता था. लाइक उसका एरिया इतना छोटा है तो कैसे कैसे उसकी पावर और ज़्यादा पावरफुल होती गई और उसने पावर बाहर से ली. कैसे ली? सो बच्चे, मैनी किंग स्टार्टेड टू प्रैक्टिस अ रिचुअल. एक रिचुअल फॉलो होता था, दैट इज़ अ अश्वमेघ यज्ञ. हैव यू हेयर्ड अबाउट दिस अश्वमेघ यज्ञ? सुना है आपने अश्वमेघ यज्ञ में? और अ हॉर्स सेक्रीफाइस. बेसिकली बच्चे इन दिस रिचुअल देयर इज़ अ ग्रैंड रिचुअल. ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड रिचुअल होता था जिससे कि दूसरे का एरिया अपने अंदर कैप्चर करने का एक तरीका था. ये बच्चे इन दिस रिचुअल देयर इज़ अ यज्ञ. एक यज्ञ किया जाता था बेसिकली जिसमें कि एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था. बेटा वो हॉर्स जहाँ जिस एरियाज में से, आई एम जस्ट स्पीकिंग इन अ हिंदी बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ठीक है? सो बेटा इन अश्वमेघ यज्ञ बेसिकली जब यज्ञ होता था इस एक हॉर्स को छोड़ दिया जाता था फ्रीली, और वो नेबरिंग टेरिटरीज में जहाँ से भी वो हॉर्स जो है चलता हुआ जाता था, दौड़ता हुआ जाता था, अगर उस एरिया के किसी किंग ने, क्वीन ने उसको नहीं रोका तो समझ लीजिए कि वो एरिया जिस भी पर्सन ने, जिस भी किंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया है उसके अंडर आ गया. बट अगर जिस भी एरिया के किसी पर्सन ने उसको रोक लिया तो उसको उसके किंग के साथ में फाइट करनी पड़ती थी टू
कैप सो बेटा द हॉर्स वॉज फॉलो बाय अ स्मॉल आर्मी और डिफेंडेंट ऑफ द हॉर्स, वो हॉर्स जाता था और उसके साथ स्मॉल आर्मी भी होती थी. द एरिया फ्रॉम द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू विदाउट एनी रेजिस्टेंस, यानी बिना किसी रोक टोक के, वॉज कंसिडर्ड एट द कैप्चर्ड टेरिटरी, यानी कि वो टेरिटरी किसके अंडर आती थी, अब किंग के अंडर आने लगी. और एनी स्मॉल किंगडम और अ पर्सन हु डेयर टू स्टॉप द हॉर्स, अगर किसी ने हिम्मत करके उस हॉर्स को रोक लिया, सो एक्सपेक्टेड द फाइट द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ, यानी कि उसके बाद उसको किंग के साथ क्या करनी पड़ती थी, फाइट. द वॉन द बैटल ऑक्यूपाइड द अदर्स टेरिटरी, और जो भी जीतता था वो उसकी टेरिटरी को कब्जा कर सकता था. इट वॉज द मैटर ऑफ प्रेस्टीज एंड इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ लूजिंग वंस ओन टेरिटरी. देयरफॉर ओनली द पावरफुल किंग ओवरटुक दिस टाइप ऑफ रिचुअल, यानी कि छोटे मोटे किंग ऐसा रिचुअल नहीं कराते थे, क्योंकि कई बार क्या होता था, अगर वो पर्सन जिसने भी उस हॉर्स को स्टॉप किया था और बैटल करी, लड़ाई करी, लेकिन अगर वो पर्सन जीत गया तो सारा राजा का जो किंगडम होता था वो दूसरे किंग के पास चला जाता था. सो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा रिस्क था. तो छोटे मोटे जो किंग्स होते थे वो इसका रिस्क नहीं लेते थे. जो भी किंग पावरफुल होता था, किंगडम उनका पावरफुल होता था, सो वही ये रिस्क लेते थे इस अश्वमेध यज्ञ को करने का. हैव यू लिसन अबाउट द लव कुश और रामायण में आपने देखा है जो किंग राम थे, राजा राम थे, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया था. एंड एज यू नो दैट अबाउट द स्टोरी कि उस समय पर लव कुश ने उसको हॉर्स को रोका भी था. सो दिस इज द अश्वमेध यज्ञ. Maintaining the army. Now in this paragraph we are just going to read कि how the king और kingdoms maintain the army, कैसे वो आर्मी रखते थे, किस तरीके से वो आर्मी को फूड और चीज़ें प्रोवाइड कराते थे, कहाँ से पैसा आता था. So maintain such army there is a vast territories. To safeguard to population, king had to maintain large armies. Maintaining armies mean that they have needed to provide food and arms. उनको क्या चाहिए होता था, खाना और आर्म्स, हथियार चाहिए होते थे. This required the king to impose taxes on the public. लेकिन किंग के पास पैसा कहाँ से आता था, पब्लिक से. अब वो कैसे आता था वो हम देखेंगे. इट्स लाइक अ फी फ्रॉम द प्रोटेक्शन, ये एक तरीके की फ़ीस होती थी कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सो आपको कुछ पे करना पड़ेगा. जैसे कि हम आज क्या देते हैं, टैक्स देते हैं. लाइक मेकिंग फोर्ट्स, रोड, स्ट्रीट्स एट्सेट्रा, विच ऑल्सो हैड टू बी फंडेड, एंड देयर दैट वी नीड अ स्टार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन. इस टैक्स कलेक्शन बेटा हम आज भी बहुत सारी चीज़ों का, घर में रहने का, आप एक कोई भी टॉफ़ी ख़रीदते हैं या कोई बड़ी कार ख़रीदते हैं, आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसा टैक्स भी देना पड़ता है. आप देखते हैं गवर्नमेंट आपके लिए क्या बनाती है, रोड, पार्क, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट लाइट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो इन दैट टाइम भी किंग्स हैव टू टेक अ टैक्स फ्रॉम द पब्लिक, एंड बेसिकली दे हैव टू अपॉइंट द ऑफिसर्स ऑल्सो टू कलेक्टिंग द टैक्स, यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर भी यहाँ किंग अपॉइंट करता था. नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, टैक्सेशन. टैक्स कैसे लिया जाता था. सो द फार्मर वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अ टैक्स, यानी कि जितना भी कलेक्शन, जितना भी फार्मर का क्या होता था, बहुत सारे एग्रीकल्चर का 1/6 पार्ट, यानी कि एक 1/6 पार्ट जो है वो किंग को पे एज अ टैक्स जो है वो देता था. अदर पीपल लाइक क्राफ्ट पर्सन हु गेव द पार्ट देयर सर्विस, यानी कि उस समय बेटा भी मनी नहीं थी तो वो क्या करते थे, सर्विसेज. फार्मर्स तो क्या करता था, फार्मर अपने एज अ टैक्स जो है वो बहुत सारा अनाज देता था, 1/6. एंड अदर पीपल, क्राफ्ट पर्सन, दे हैव टू फ्री सर्विस फॉर द किंग. किंग के लिए वो फ्री सर्विस देते थे. एंड दे हैव अ फिक्स नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू डू द
वर्क, यानी कि कुछ महीनों के कुछ दिन जो है वो बीइंग अ फ्री ऑफ कॉस्ट किंग के लिए काम करते थे. सिमिलरली द पर्सन हु आर हार्डर्स एंड हंटर्स दे हैव प्रोवाइड द पोर्शन ऑफ द प्रोड्यूस एज अ टैक्स, दे कंट्रीब्यूट एज अ फूड फॉर द आर्मीज. अब आप देखेंगे कि इतने सारे फार्मर्स थे, उन्होंने टैक्स, बीइंग अ टैक्स, उस समय मनी तो नहीं थी, तो उन्होंने टैक्स के रूप में क्या दिया, बहुत सारा अनाज दे दिया. और वो अब उस अनाज का क्या करेंगे, उस सीड्स का, उस सेरियल्स का, पल्सेस का क्या करेंगे, वो आर्मी को खाना खिलाने के काम आती थी. द ट्रेडर ऑल्सो पेड अ पोर्शन ऑफ देयर इनकम फ्रॉम द ट्रेड एज अ टैक्स. आज भी सभी ट्रेडर्स गवर्नमेंट को ट्रेड करने का टैक्स देते हैं. गवर्नमेंट के पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि वो रोड्स बनवाए, स्ट्रीट लाइट्स लगवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए, पार्क बनवाए, टॉयलेट्स बनवाए. सो ये सारा पैसा आज भी हम लोग गवर्नमेंट को बीइंग अ टैक्स देते हैं. हाउस टैक्स, रोड टैक्स, कोई भी टॉफ़ी भी लेते हैं तो उसमें भी हमें कुछ परसेंट या कुछ पैसा हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज अ टैक्स. गॉट इट बच्चे? नाउ करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड. अब कैसे कैसे करेंसी आई वो हम पढ़ेंगे. दिस इज़ द पंचमार्क कॉइन्स फ्रॉम द कोसाला. बेटा कोसाला इज़ अ प्लेस, इट्स अ महाजनपदा, जहाँ से कि ये सारे कॉइन्स, पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं. द ट्रेड इंक्रीज अ वॉल्यूम, देयर वॉज अ नीड फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम. द बार्टर सिस्टम कुड नॉट बी सस्टेन. यानी कि अभी पहले बार्टर सिस्टम, what is that meaning of barter system? Beta, barter system means exchange of goods for a different type of good without the use of money. Like I am a potter, यानी कि मैं एक कुम्हार हूँ, एंड यू आर अ फार्मर, आप एक फार्मर हो. ठीक है. सो वी डोंट हैव मनी, हमारे पास मनी तो नहीं है. हम क्या करेंगे, बार्टर सिस्टम करेंगे. आप अपना कुछ अमाउंट, कुछ परसेंट ऑफ सेरियल्स, यानी कि कुछ परसेंट ऑफ अनाज आप मुझे दे दोगे, उसके बदले में मैं क्या दूंगी आपको मैं उसके बदले में कुछ पॉट या दूंगी. ठीक है. यानी कि मैं आपको मिट्टी के बर्तन दूंगी, आप मुझे गेहूँ, चावल, वॉट एवर इज़ दैट, आप मुझे देंगे. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ठीक है. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड विदाउट यूज ऑफ मनी, यानी कि बिना पैसा यूज़ करें जो एक्सचेंज ऑफ सामान होता है, दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम. In that time, now the barter system has not been sustained. Now Panchmark coins formed from the different shows that gradually consent began in a kingdom. अब Panchmark coins आ गए थे और बेसिकली हमें बहुत सारे सेंटर्स से मिले. There is some development in the center trade, that is a Vaishali, अयोध्या, मथुरा बिकम अ इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर. यानी कि उस समय पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन चुके थे. कौन कौन से? वैशाली, अयोध्या, मथुरा. ओके. नाउ डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट हुआ हम ये जानते हैं. सो बेटा, इन दिस देयर इज़ अ 2 मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड. द फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स. अब क्या हुआ कि जैसे जैसे अब पहले अभी कैसे चल रहे थे, लकड़ी के चीज़ें चल रही थी, बोन से चीज़ों का यूज़ होता था, हड्डियों से खुदाई के काम आते थे, या लकड़ी का यूज़ किया जाता था खुदाई के लिए. सो नाउ दे आर यूजिंग द आयरन इम्प्लीमेंट्स लाइक प्लग, एजेस. ठीक है. जो फार्मिंग के लिए इम्प्लीमेंट यूज़ होते हैं. दे हेल्प टू द प्लग द लैंड विद द डेंस क्ले सॉइल बेटर देन द वुडन प्लग. यानी कि आयरन प्लग से अच्छे से खुदाई हो पाती थी एज कंपेयर देन वुडन प्लग के. द सेकेंड चेंज, फार्मिंग सिस्टम वॉज टेक्निक. पहला क्या चेंज आया कि अब आयरन यूज़ होने लगा था टेक्निक में. ठीक है. नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ, फार्मिंग सिस्टम चेंज हो गया. अब ये नई टेक्निक यूज़ करने लगे. दे आर गोडिंग पैडी सैपलिंग एट अ वन प्लेस एंड देन ट्रांसप्लांट इनटू फील्ड. पहले बेटा ये नॉर्मली खेती करते थे, अब ये आपने देखा है पैडी सैपलिंग. बेसिकली इन दिस हेल्प इट्स अ, आप देखते हो छोटे छोटे से
टुकड़ों में किए जाती है खेती। आप देखते हो वहाँ पे छोटी छोटी सी growing the paddy sapling on the one place to the transplanting into other field. This basically help to increase the survivability of sapling and increase the yield. Both these introduction led the increase the agriculture produce. And the another thing you have to see this, even the food production increase, process the plantation and working in the field was a difficult occupation. So beta जो land owners थे, they have started to hire service of landless people. उन्होंने क्या रखे, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं होती थी खेती करने के लिए, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, लैंड ओनर्स होते थे, उन्होंने अब क्या करने लगे, लोगों को हायर करने लगे टू डू द वर्क, एंड दे पीपल कॉल्ड अ दास और दासीज फॉर देम. ठीक है, यानी कि दास और दासी रखने लगे जो कि दूसरों के दूसरों के खेत में खेती करते थे. Now the another thing, a social evil of the class discrimination. Beta, in the previous classes we have already read about the social division like varnas. मैंने आपको वर्ण बताए थे. How many varnas are there? 4. We have already read this ना, in Vedic period age में हमने पढ़ा था. There are 4 kind of vर्ण. The first one is Brahmin or priest community. Second, Kshatriya or a warrior community. Third is Vaishya or a agriculturist, craft person, trading community. And Shudra, the Shudra who work an occupation of removing carcasses like a leather का काम करना, footwear clean करना, road clean करना, sweeping, cleaning. After the day of time or after the passage of time, these social division become a more stringent. Stringent means होता है बेटा बहुत कठोर. Stringent means क्या होता है, बहुत कठोर. ठीक है. It was a not left an occupation. पहले बेटा ये काम शुरू हुआ था सिर्फ एक काम के लिए, एक ऑक्यूपेशन के तौर पर. बट आफ्टर अ बीइंग ऑफ टाइम, यानी कि इस टाइम को बढ़ते बढ़ते लोगों ने इसे ही कास्ट मानना शुरू कर दिया. लाइक द फैमिली ऑफ अ पर्सन बोर्न इनटू. बेसिकली the children of Brahmin were by the birth Brahmin irrespective of type of occupation they overtook in life. कि अगर ब्राह्मण का बेटा है तो ये भी ब्राह्मण ही होगा, ये भी पूजा पाठ ही करेगा, ये भी यही काम करेगा. और अगर स्वीपर है तो स्वीपर का बेटा भी स्वीपर वाला ही काम करेगा. लाइक इफ़ द वॉरियर सन वॉज फिजिकली वीक, अगर किसी राजा का पुत्र फिजिकली वीक है एंड ही डिड नॉट अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ना ही वो लड़ सकता है, ना ही वो कोई चीज़ की हेल्प कर सकता है, ना ही वो जनता को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट दे स्टिल कंसीडर्ड एज अ वॉरियर क्लास, यानी कि स्टिल उसको राजा ही माना जाएगा. दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज beginning of major division of Indian society. These continue exist in many parts even today. यानी कि आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी सिस्टम और कास्ट सिस्टम चलता आ रहा है. सो बेटा दिस सोशल डिवाइड बिकम टू सर्व दैट ब्राह्मण टुक इट्स अ वेरी बर्थ राइट टू गेन. ये एक लोगों ने माइंडसेट बना लिया था कि इफ़ द पर्सन इज ब्राह्मण का क्या जन्म सिद्ध अधिकार हो गया कि अगर ये ब्राह्मण है, अगर ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो दे हैव राइट टू गेट अ एजुकेशन एंड ही ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ सुपीरियर टू ऑल, यानी कि सभी लोगों से सुपीरियर होगा. दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट अदर, यानी कि उन अदर लोगों को डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है बेटा भेदभाव करना. ठीक है, पक्षपात या भेदभाव. ठीक है. शूद्रा एज अ प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम गेनिंग एजुकेशन, यानी कि शूद्रों को रोका जाता था किस चीज़ के लिए कि ये एजुकेशन नहीं लेंगे एंड किसी और अदर क्लासेस लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके साथ इनका कोई भी मेल नहीं है. इवन दो मैरिजेस बिटवीन अ डिफरेंट वर्ना आर अनएक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, यानी कि किसी भी कास्ट का पर्सन दूसरे कास्ट के लड़का या लड़की से शादी नहीं कर सकता था, उसको हमारी सोसाइटी जो है वो
एक्सेप्ट ही नहीं करती थी। रिलीजियस सेरेमनीज ये इनकम्प्लीट होती थी विदाउट अ प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण, ठीक है। द कॉमनर्स हु नॉट अलाउड टू गेन नॉलेज ऑफ वेदा, यानी कि जो लोग कॉमनर्स होते थे, गांव की जनता होती थी, उन्हें अलाउ नहीं था वेद को पढ़ना। एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, यानी कि अदर भी चीज़ें पढ़ना अलाउ नहीं था। सो बेटा द साइंटिफिक डेवलपमेंट, सो इन दिस डिस्कवरी ऑफ आयरन, एज यू नो दैट हमने पढ़ा कि आयरन की डिस्कवरी हुई, अब मेटल यूज़ होने लगा है। दिस मेटल इज़ यूज्ड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ आर्ट, किसी चीज़ आर्ट में यूज़ होने लगा। एंड द आयरन देन ऑल्सो यूज इन डिफरेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट, अब इस आयरन से बहुत सारे और वेपन्स भी बनने लगे, लाइक स्वॉर्ड। स्वॉर्ड जानते हैं क्या होती है? तलवार। daggers, spears, tipping of arrows with the metal grow in a lips on bones. The extraction of chemical out of herbs taking advantage of techniques of अथर्ववेद। बेटा अथर्ववेद के अंदर आपने 4 वेद्स पढ़े हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद। सो दीज आर द 4 वेद, जिसमें कि अथर्ववेद में आपको मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और जिससे हमने देखा कि आयुर्वेद, आज भी हम आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें कि हमारे नेचुरल हब से भी चीज़ें बन सकती हैं, इनसे भी किसी भी डिजीज़ को ख़त्म किया जा सकता है। हैविंग रीड अबाउट द जनरल पैटर्न ऑफ लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेट अस द स्पेसिफिक केसेस ऑफ मगध एंड वज्जी, विच वर द 2 फेमस महाजनपदा इन दिस पीरियड। बेटा बहुत सारे बच्चों ने कल पूछा मैम विच वॉज द फेमस महाजनपदास। सो दीज मगध एंड वज्जी, मगध एंड वज्जी, हम इसके इसमें देखेंगे। दिस इज द मगध एंड वज्जी। मगध एंड वज्जी वॉज द powerful Mahajanpadas, most powerful Mahajanpadas of this period. So beta these are the question answers 1 and 2 and 3. The one answer is name the 2 different forms of governance in the Mahajanpada, republic and monarchical. And the second one, name some powerful monarchical Mahajanpadas, Magad, Vatsa, Avanti, Koshala. ये 3rd and 4th नहीं करना। नेम अ ग्रैंड रिचुअल परफॉर्म बाय किंग टू कैप्चर मोर टेरिटरीज, दैट इज अ अश्वमेघ यज्ञ। हाउ मच टैक्स वॉज पेड बाय द फार्मर? 1/6। नेम सम एरिया विच डेवलप्ड एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड, वैशाली, अयोध्या, मथुरा। बेटा दीज 5 क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, 3rd और 4th वाला क्वेश्चन नहीं करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेटा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच फुल वीडियो एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। कोई भी काम आपने आगे के लिए नहीं छोड़ना है, सेम डे यू हैव टू कंप्लीट एंड फिनिश योर वर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।